हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू प्लूटस आईएएस। तो ये है हमारा नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम देखने जा रहे हैं एक यूपीएससी लॉ ऑप्शनल पेपर 1 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसको डिस्कस करेंगे, जिसमें पूछे हुए क्वेश्चंस को समझेंगे, ये देखेंगे कि उस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे लिखना है और ये देखेंगे कि उस क्वेश्चन का ब्रेकडाउन क्या है और उसके बाद में उस क्वेश्चन की हेल्प से हमें कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस। ओके, so the question that was asked in paper 1, law optionals paper 1 in 2025. So the line of this question was, if article 21 confers on a person the right to live a dignified life, does it also includes a right not to live? आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ देता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि पार्ट थर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि फंडामेंटल राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये जो आर्टिकल जो हमें राइट टू लाइफ दे रहा है, क्या ये आर्टिकल हमें राइट नॉट टू लिव भी दे रहा है? तो बेसिकली इसको हमें एग्जामिन करना है विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द डिसाइडेड केस लॉज। चलिए स्टार्ट करते हैं। So first of all, I would like to break down the line of this question. So I would like to break down the question, and the breakdown of the question is like this. So firstly, the question is on Article 21. Okay, so this is well understood. So it is saying that Article 21 confers on a person the right to live. Okay, so the exact wordings of the article is this only. तो ये हमें देता है right to live a dignified life. Okay, so dignified life का interpretation शुरुआत से नहीं था. So this interpretation came in after Menka Gandhi case. Okay, so we will see that also. So does it also includes a right not to live? Does it gives a person the right to commit suicide? So this is the major question that is in front of us that we have to deal with in this question. Okay, so examine the constitutional provisions. So we have to examine what is actually mentioned in the constitution itself, and also with the help of decided case laws. Okay, so let us examine this. So this is actually the exact text taken from the Bare Act. Okay, so what exactly is written? So the heading is protection of life and personal liberty. Okay, so this is saying protection of life and personal liberty. So it is mentioning that no person, whether citizen, whether alien, no person shall be deprived of his life or personal liberty. Okay, so a person enjoys personal freedom, a person has basically personal liberty and right to life. Okay, except according to the procedure established by law. So I will make you understand this कि इसमें ये कहा जा रहा है चाहे स्टेट हो, तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि स्टेट शैल नॉट, नो, इट इज बेसिकली नो पर्सन शैल बी डिनाइड। तो किसी को भी, चाहे स्टेट करे, कोई भी करे। अच्छा, now one major thing is except. So this is a limitation, except according to the procedure established by law. So if a law by the parliament, okay, so you also know that with respect to fundamental rights, for enforcing the fundamental rights, the law can be made by parliament only. So not by the state legislature. Okay, so basically the parliament can make law, and according to that law only the right to life and personal liberty of a person can be deprived of. Okay, since the promulgation of the constitution until Menka Gandhi case, what happened was the judiciary interpreted this as it is. The judiciary was of the opinion कि एक law मानो, for example XYZ नाम का law एक पार्लियामेंट ने बना दिया। अब इस पार्लियामेंट के इस लॉ के बनाने के बाद ये नहीं देखा जाएगा कि वेदर दिस लॉ इज राइट और नॉट, arbitrary, malafied, bona fide, non-arbitrary. This will not be taken into consideration. A law is there and the judiciary will just have to read the law line by line and have to enforce it. Okay, so getting my point? Not exactly enforce it but to check whether that is right or not. तो वो अगर law है तो बेसिकली वो लॉ जस्ट इतना देखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, और उसमें उसकी अच्छाई या बुराई नहीं देखी जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा वेदर द लॉ इज राइट और नॉट, गुड और बैड नहीं देखा जाएगा। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड आफ्टर मेनका गांधी केस, थिंग्स चेंज्ड। वी विल सी दैट हाउ थिंग्स चेंज्ड. So Article 21 of the Constitution says that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to the procedure established by law. Though couched in negative language, so this is negative. So negative और positive right को हम समझते हैं. So negative क्या होता है? For example, I am asking you to not to stand up, sit there only. So
I am acting negatively on you, I am stopping your movement, okay, I am acting negative. But now what I am saying is I'm asking you to stand up and do charity, okay. So this is what, this is positive in nature. This article looks like negative, that the state shall not, the state shall stop, but actually in reality the connotation of this article is positive in nature. How? We will look forward. So basically how इसका आंसर अभी हम देख लेते हैं, कैसे ये पॉजिटिव, कैसे ये तो रोक रहा है ना सबको कि आप किसी की लाइफ और लिबर्टी नहीं जो है ले सकते हो, बट ये पॉजिटिव है इन रियलिटी। कैसे? इसमें जो टर्म लाइफ है, तो लाइफ कहीं पर भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं की गई है, लाइफ जुडिशरी पे छोड़ दिया गया है कि लाइफ क्या है, अच्छी लाइफ, बुरी लाइफ, ऐसे लाइफ, वैसे लाइफ, लाइफ क्या है, लाइफ इज लेफ्ट टू द जुडिशरी टू इंटरप्रेट इट, ओके। सो बेसिकली नाउ विद द जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हमारे सामने ये आया है कि विद डेलिबरेट जजमेंट्स जुडिशरी ने ये कहा है कि लाइफ इज नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस, लाइफ आपको कोई मार नहीं रहा है, आपको जिंदा रख रहे हैं, बस वो लाइफ नहीं है, लाइफ इज अ डिग्निफाइड लाइफ, लाइफ इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ। लाइफ का मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि बस आपको छोड़ दिया गया है। आ रही है बात समझ में? सो लाइफ contains the word dignified life, okay, so let us take into consideration these things, okay. So life means, so basically this is life, this is a civilized human life, not this kind of life। यहां पर भी आप कहोगे राइट टू लाइफ तो है, इसको कोई मार थोड़े रहा है इंसान को, बट इस इंसान के पास कपड़े नहीं है, इस इंसान के पास एजुकेशन, एक अच्छा घर, क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन, देखो कहाँ जो है वहां बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ये इंसान जो है कैसे अपना घर चला रहा है, तो इसके पास राइट टू लाइफ तो है लिटरल सेंस में, टेक्निकल सेंस में, बट क्या सच में राइट टू लाइफ है इसके पास? नहीं है, बिकॉज ये एनिमल, इसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं बचा है। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 इट इज पॉजिटिव, दैट मींस इट गिव्स द रिस्पांसिबिलिटी टू द स्टेट कि आपको लोगों की राइट टू लाइफ केवल ऐसे नहीं इंश्योर करनी है, ऐसे इंश्योर करनी है, आपको उनको डिग्निटी के साथ रहने की जो है वो मतलब उनके लिए जो है ऐसी कंडीशंस क्रिएट करनी है सो दैट द पीपल कैन लिव अ डिग्निफाइड लाइफ, ओके। सो मूविंग अहेड, so judicial expansion of right to life. So what happened after Menka Gandhi versus Union of India case? The court held that the procedure depriving a person of life must be just, fair and reasonable, है ना, आर्टिकल 21 में, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहां ये कहा गया है कि वो प्रोसीजर ऐसा नहीं होना चाहिए दैट द स्टेट कैन डिप्राइव एनीवन ऑफ देयर राइट टू लाइफ, नहीं, वो प्रोसीजर जस्ट होना चाहिए, वो प्रोसीजर फेयर होना चाहिए, वो प्रोसीजर रीजनेबल होना चाहिए। The decision transformed Article 21 into a repository of due process of law, substantive due process of law. So substantive due process of law is an American concept. Okay, so after this Menka Gandhi case, this was inculcated in Indian Constitution also by the deliberative judicial interpretation of the article. So it says that due process of law is now will also be taken into consideration, and बेसिकली इट विल बी लुक्ड कि जो लॉ बना रहा है पार्लियामेंट, ठीक है, लोगों की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करने के लिए, वो लॉ भी जस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो एक इंसान के पास केवल राइट टू लाइफ नहीं है, उस इंसान के पास राइट टू डिग्निफाइड ऑटोनॉमी एंड फेयरनेस उसके पास है, ठीक है, डिग्निफाइड लाइफ उसके पास में जो है वो व्यतीत करने की जो है आजादी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। सो इन फ्रांसिस कोरली मुलिन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली केस में क्या था, कोर्ट हेल्ड दैट द राइट टू लाइफ इंक्लूड्स द राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑल दैट गोज अलोंग विद। सो ऑल दैट गोज अलोंग इट मतलब एक ह्यूमन डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जो भी चाहिए वो आपको अवेल कराना होगा एक इंडिविजुअल को, ओके। So issue क्या है? Now what is the issue? So issue is whether the right to life includes right to die. अब देखो क्वेश्चन में तो यही बात पूछी गई थी, whether the right to life includes right to die। तो ऐसा है कि आर्टिकल 21 को पॉजिटिव वे में एक्सपैंड किया गया है, बट यहाँ क्वेश्चन आता तो है डेफिनेटली कि क्या सुसाइड भी इसमें जो है आपके पास राइट टू लाइफ के साथ राइट टू डाई भी है, सुसाइड भी है कि नहीं है, वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ लाइफ है कि नहीं है। So the resolution of this question is here, rejection of a general right to die. So basically ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में जो रेशियो डेसिडेंडी था, मतलब द रीजनिंग दैट वाज अडॉप्टेड बाय द जुडिशरी टू गिव द वर्डिक्ट वाज दैट राइट टू लाइफ तो एक नेचुरल राइट है,
ये तो बाई नेचर हमें मिल रहा है, हमें इंश्योर कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन बाई फंडामेंटल राइट, और बेसिकली एनफोर्स कर रहा है आपका एग्जीक्यूटिव, और देख रहा है जस्टिस, अगर गलत हो रहा है तो वो जुडिशरी है, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन राइट टू डाई क्या है इस राइट टू लाइफ के साथ? इनकंसिस्टेंट है, इट इज इनकंसिस्टेंट, दैट वाज हेल्ड इन ज्ञानकौर केस, ओके। सो राइट टू डाई इज इनकंसिस्टेंट विथ राइट टू लाइफ, एंड आर्टिकल 21 कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड इट्स ओन निगेशन। भाई आपके पास राइट टू लाइफ एक साइड दे रहे हो, और फिर जुडिशरी कह दी कि आपके पास राइट टू डाई भी है, दोनों तो एक निगेशन हो गए ना एक दूसरे के, दोनों तो एक दूसरे के लिए एंटीथेटिकल है ना। सो दिस कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड इन दिस वे। सो द कोर्ट upheld the constitutional validity of section 309 of IPC of that time, okay। तो इन्होंने कहा कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी क्या था कि उसमें अगर कोई सुसाइड करता है तो इट क्रिमिनलाइजेस सुसाइड, ओके। तो इस प्रोविजन को अपहेल्ड किया, ठीक है। एंड अबेटमेंट डू नॉट फॉल विद इन द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 21। और अगर आप सुसाइड कमिट करते हो, इस राइट टू लाइफ को अबेट करते हो, इस राइट टू लाइफ को नेग्लिफाई करते हो, नलिफाई, तो उस केस में प्रोसीडिंग्स विल हैपन ड्यूरिंग दैट टाइम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, ओके। नाउ क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड इन ज्ञान कौर केस। सो वन थिंग, ये बेसिकली एज अ प्रिंसिपल नहीं लाया गया था, पूरी तरीके से इसको जो है इंश्योर नहीं किया गया था, लेकिन एक बात कही गई थी बहुत इंपॉर्टेंट। सो इन ज्ञान कौर केस इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट the right to life include right to live with dignity up to the end of natural life। अच्छा, right to life में लेकिन एक और चीज है, right to life includes right to live with dignity। मरते दम तक आपके पास dignity भरी लाइफ होनी चाहिए, ठीक है। आप कष्ट में हो, आपका जीवन टर्मिनली इल पेशेंट है, कैंसर से जूझ रहा है, खूब दर्द में है, पूरा जीवन हो गया है उसको दर्द, अब वो जीवन दर्द में ही जाने वाला है, एक ब्रेन डेड इंसान है, शरीर खराब हो रहा है, तो वो क्या है, वो डिग्निटी के अगेंस्ट है। अगर एक इंसान जो है वो खुद अनकॉन्शियस है, हमेशा के लिए हो गया है, और वो इंसान जो है वो अब अपने खुद ही जो है वो विलिंग नहीं दे सकता, तो उस केस में भी उसके पास एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। सो इन दिस केस राइट टू डिग्निटी, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी अप टू द एंड ऑफ नेचुरल लाइफ भी दिया गया था, ओके। सो इंक्लूड्स अ डिग्निफाइड प्रोसेस ऑफ डाइंग। तो जो मरने का जो नेचुरल प्रोसेस, नॉट आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल विल कम अंडर सुसाइड, सुसाइड इज अगेंस्ट द राइट टू लाइफ, सुसाइड नहीं, बट जो मरने का प्रोसेस होगा, ठीक है, वो भी डिग्निटी के साथ होना चाहिए टर्मिनली इलनेस वाले पेशेंट का, ओके। सो दिस ऑब्जर्वेशन बिकेम द डॉक्ट्रिनल बेसिस। बेसिकली कोई प्रिंसिपल नहीं यहाँ पर दिया गया, एक बस डॉक्ट्रिन दी गई, प्रिंसिपल एज इन की जरिया नहीं बताया गया कि एक इंसान जो है अगर ऐसी सिचुएशन में है तो उसके साथ क्या करना चाहिए, कैसे लाइफ सपोर्ट विड्रॉ करना चाहिए, वो सब नहीं बताया गया, बट एक बेसिकली डॉक्ट्रिन दी गई यहाँ पर, ठीक है। सो डॉक्ट्रिन ही आगे चल के यूथेनेशिया के बेसिस बनी, ठीक है। यूथेनेशिया मतलब एक इंसान की लाइफ को खत्म करना इन द केसेस ऑफ सीवियर इलनेसेस, ओके। सो पैसिव यूथेनेशिया, फर्स्ट जुडिशियल रिकॉग्निशन। तो इस पैसिव यूथेनेशिया, यूथेनेशिया दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्टिव, एक होते हैं पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, जानबूझ करके डेथ कॉज करना, इसको इम्परमिसिबल। बट दूसरा है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया क्या है, मतलब कि एक इंसान की लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट, एक ऐसा ट्रीटमेंट, फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर पे है वो इंसान, वो लाइफ सस्टेनिंग है, बस लाइफ चल रही है उस इंसान की, उसके अंदर जान जैसी कोई चीज ऐसा बची नहीं है, वो इंसान अनकॉन्शियस है, परमानेंटली डेड हो चुका है, बट बस लाइफ, बस जीवित है, सांस ले रहा है। तो ऐसे लाइफ सपोर्ट ट्रीटमेंट को विड्रॉ कर लेना एक्सेप्शनल केसेस में, इसको कहा जाता है पैसिव यूथेनेशिया। सो कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया को अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में परमिट कर दिया। तो द कोर्ट परमिटेड कि हाँ भाई, लेकिन उसमें एक सब्जेक्शन था कि अगर ऐसी कंडीशन है तो हाई कोर्ट का अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग दैट फोर्सिंग अ पर्सन टू लिव ऑन अ परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट मतलब बस जीवित, बस उसके पास कोई मूवमेंट नहीं, कोई मोबिलिटी नहीं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं, कुछ नहीं। तो आप अगर एक ऐसा कोई पेशेंट है, उसके फैमिली मेंबर उनके बिहाफ पे अगर हाई कोर्ट से परमिशन लेते हैं, तो उनको पैसिव यूथेनेशिया के अंडर जो है उनको विदा किया जा सकता है, ओके। सो नेक्स्ट इज राइट टू डाई विद डिग्निटी एफोन। एक अनदर केस है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 में, बेसिकली जा करके फाइनली एक रेशियो दिया गया।
राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स द राइट टू डाई विथ डिग्निटी। इसी बात को दोबारा से पॉजिटिव तरीके से रीअफर्म किया गया और ये कहा गया पैसिव यूथेनेशिया इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल। ओके, लिविंग विल, यहाँ एक और मतलब एक पूरा प्रिंसिपल्स दिए गए कि आप एक जब जीवित स्टेज में है तब एक इंसान एक लिविंग विल भी बना सकता है कि अगर मैं बाई चांस ऐसी वेजिटेटिव स्टेज में आ जाऊं तो उस केस में मेरे साथ आप क्या करेंगे। तो लिविंग विल वाज आल्सो परमिटेड। सो नाउ एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स आर वैलिड। सो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव मींस ऐसे डायरेक्टिव्स जो बेसिकली पहले से ही अरेंज कर दिए गए हों। ऑटोनॉमी एंड बॉडीली इंटीग्रिटी आर इंटीग्रल टू ह्यूमन डिग्निटी। मतलब ऑटोनॉमी, आपके पास ये ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि आप खुद डिसाइड कर सके कि आपका ऐसे स्टेज में आपके साथ क्या होगा। और बॉडीली इंटीग्रिटी, आपके जो एक लोकल भाषा में बोलते हैं कि मिट्टी खराब, मिट्टी पलीत ना हो, मतलब शरीर के आपका शरीर ऐसे ही रहे और आप चले जाएं, वो एक बॉडीली इंटीग्रिटी आपके ही जीवन का एक पार्ट है, आपके आर्टिकल 21 का एक पार्ट है, परमिसिबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। Court clarified that refusal of medical treatment in terminal illness is an exercise of personal autonomy and not an act of suicide. ये जो आप करते हैं ऐसे स्टेज में लाइफ सपोर्ट को हटा देना, ये बेसिकली सुसाइड नहीं है। ये क्या है? ये आपकी खुद की ऑटोनॉमी है आपके शरीर के ऊपर। ठीक है, डॉक्ट्रिनल डिस्टिंक्शन क्लैरिफाइड। सो इसमें क्लियर डिस्टिंक्शन कर दिया गया कि राइट टू लाइफ नहीं है आपके पास में, बट राइट टू डाई विथ डिग्निटी आपके पास में है। ठीक है जी, ओके। तो फोकस क्या? राइट टू डाई मतलब अपनी लाइफ को स्वयं खत्म करना, राइट टू डाई विद डिग्निटी सफरिंग्स को खत्म करना, आपके जो सफर कर रहे हैं आप। इसका नेचर एक्टिव है, नॉट रिकॉग्नाइज्ड, रिजेक्ट कर दिया गया। ये बेसिकली सैंक्टिटी ऑफ लाइफ के अगेंस्ट है। So here, basically, right to die with dignity. It is about ending the sufferings of a terminally ill patient. So it is allowing the natural death. Okay, so it is recognized and accepted with some safeguards, and it protects the dignity of life of a person. Okay, so in 2011, Aruna Shanbhag, in 2000, basically 18 कॉमन कॉज, एंड 2023 में भी कॉमन कॉज केस हुआ था, बट सम ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, यहां से परमिशन लो, वहां से परमिशन लो, that were eased. Okay, so you can read it also. So present constitutional position of Article 21. Article 21 guarantees life and personal liberty. Right to die is not recognized as a fundamental right. Right to die with dignity is constitutionally protected. Active euthanasia remains unconstitutional. Not active, but passive euthanasia is permitted under judicial safeguards. Okay, so this is the conclusion that you can write. Article 21 does not include a general right not to live. However, the judicial interpretation ये recognize करता है कि right to die with human dignity is an intrinsic component of the right to life. Okay, with dignity. Indian constitutional jurisprudence, Indian constitutional principles, evolution of laws, precedents, thus balances the sanctity of life with respect of autonomy, dignity, and human treatment at the terminally ill stage of life. Okay, so thank you so much for listening to it. If any question is there, if any you want me to make topic videos on any related other topics, you can please let me know. Thank you so much for watching.